بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگنت لاتعداد درود و سلام آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل اطہار پر۔ میں ہوں دا میسیج ٹی وی سے خالد بخاری۔ ہم نے اپنے ناظرین کے ذوق کے مد نظر آن لائن کتاب کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نئی ویڈیو لت پت اور اساس مفارقت کے نام سے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی کاوش آپ کو پسند آئے گی، اور ان تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو ان کو بروقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس لازمی دیجیے گا۔ ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں جو گئے بگئے ہمیں اچھے کمنٹس سے مستفید فرماتے رہتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس روز حرم شریف کا رنگ ہی کچھ اور تھا۔ اگرچہ وہی فرش تھا، وہی دیواریں تھیں، وہی ستون تھے، وہی زائرین تھے، وہی نمازی تھے، وہی سجدے تھے، وہی طواف تھا، لیکن نہ وہ شوق تھا، نہ وہ شدت تھی، نہ وہ ولولہ تھا۔ سارے حرم پر ایک اداسی چھائی ہوئی تھی۔ تسبیحیں رک رک کر چل رہی تھیں، انگلیاں کانپ رہی تھیں، ہونٹوں پر لرزش تھی، کندھے ڈھلکتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، گردنیں جھکی ہوئی تھیں، نگاہیں نم آلود تھیں۔ مطاف میں جو جوش نظر نہ آتا تھا، طواف کرنے والے رک رک کر چل رہے تھے، جیسے ڈرتے ہوں کہ طواف ختم نہ ہو جائے۔ اس وقت زائرین طواف وداع میں مصروف تھے۔ خانہ کعبہ کے حضور وہ ہمارا آخری دن تھا، آخری حاضری۔ اس روز ہم سب زائرین نہیں بلکہ حاجی تھے۔ احرام اتر چکے تھے۔ یا اللہ میں حاضر ہوں کہ نعرے ختم ہو چکے تھے۔ خانہ خدا خود بدلا ہوا تھا۔ خانہ کعبہ پر نیا غلاف چڑھا ہوا تھا۔ نئے کپڑے پہنے وجود نیا لگ رہا تھا، جیسے اجنبی ہو، جیسے ہماری طرف صرف سرسری نظر اور سرسری جان پہچان رکھتا ہو۔ خانہ کعبہ کی منڈیر خالی پڑی تھی، کوئی وہاں سے جھانک نہیں رہا تھا۔ صرف منڈیر ہی نہیں، سارا کوٹھا خالی پڑا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ کبھی آباد۔ اس میں وہ احساس موجودگی نہ تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ خالی بت ہو۔ جب ہم پہلی مرتبہ زائرین کی حیثیت سے مکہ معظمہ میں آئے تھے تو خانہ خدا کو دیکھ کر شدت سے ایک موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ اس کے ایک ایک پتھر میں زندگی تھی، پتھر کی ایک ایک رگ کسی وجود کی تڑپ سے سرسار تھی۔ اس وقت کسی نے محسوس نہیں کیا تھا کہ وہ پتھر کا بنا ہوا ایک بت ہے۔ کسی کو یہ خیال نہ آیا تھا کہ لامحدود اللہ کو اس چھوٹے سے کوٹھے میں کس طرح مقید کیا جا سکتا ہے، کہ ایک اتنی عظیم قادر مطلق ہستی اس کوٹھے میں کس طرح سما سکتی ہے، کہ لامتناہی کائنات کے والی کو ایک چھوٹے سے پتھر کے کوٹھے میں محدود کر دینا ایک مذاقہ خیز بات ہے۔ پتہ نہیں کیوں پڑھے لکھے لوگ، اسلام کو جاننے سمجھنے والے لوگ ان دنوں سبھی محسوس کرتے تھے کہ وہ اس کا گھر ہے، وہ اس کوٹھے میں مقیم ہے، وہ اس چار دیواری میں چھپا بیٹھا ہے۔ ان دنوں وہ کوٹھا ساری کائنات پر مسلط اور محیط تھا، لیکن آج وداع کے روز وہ کوٹھا خالی خالی دکھتا تھا۔ اس کے باوجود زائرین مفارقت کے جذبے سے نڈال تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنے اللہ سے جدا ہو رہے ہیں، اسے الوداع کہہ رہے ہیں، خدا حافظ کہہ رہے ہیں۔ جدائی کے خیال سے ان کی آنکھیں آنسوؤں میں تیر رہی تھیں۔ دفعتاً حرم شریف میں ایک شور اٹھا۔ سب کی نگاہیں خانہ خدا سے ہٹ کر حرم شریف کے صحن کی طرف اٹھ گئیں۔ وداع ہونے والا وہ پہلا قافلہ تھا۔ وہ قافلہ 40-50 افریقیوں پر مشتمل تھا، جن میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی اور بچے بھی۔ وہ سب حرم میں بنی ہوئی اس شاہراہ پہ کھڑے تھے جو سیدھی بیرونی دروازے کو جاتی ہے۔ ان وداع ہونے والے افریقیوں کے چہرے فرط محبت اور غم جدائی سے مسخ ہو چکے تھے۔ ان کی نگاہیں خانہ خدا پر مرکوز تھیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، پیشانیوں میں سجدے تڑپ رہے تھے۔ ان کا انگ انگ عجز و احترام اور دکھ سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ سب خانہ خدا کی طرف منہ کیے الٹے پاؤں مسجد کے بیرونی دروازے کی طرف چل رہے تھے۔ ہر قدم اٹھانے کے بعد ان کے جذبے میں مزید شدت پیدا ہو جاتی، تڑپ میں اضافہ ہو جاتا، دکھ میں گہرائی اور آنسوؤں میں مزید روانی آ جاتی۔ ان کے چہرے جدائی کے درد اور کرب کے جذبے سے پھوروں کی طرح رس رہے تھے۔ یہ قافلہ الٹے پاؤں رینگتا رہا،
रेंगता रहा। हरम में बैठे हुए ज़ारीन हक्के बक्के इनकी तरफ देखते रहे। ज़िंदगी में मैंने कई एक अजीम जज्बाती मनाजर देखे हैं, लेकिन इस रोज़ हरम में विदा के इस मंज़र में इतना तासर था, इतनी शिद्दत थी जो मैंने कभी नहीं देखा था। ज़ारीन अपनी निगाहें इस मंज़र से हटा नहीं सकते थे, जैसे किसी शहर से पत्थर के बन गए हों। ऐसे लगता था जैसे अल्लाह अपने घर से निकलकर विदा होने वाले काफ़िले में तहरील हो गया हो। वो 50 अफ्रीकी इस वक्त अल्लाह से लथपथ हो रहे थे। इनके चेहरे अल्लाह की मोहब्बत से यूं नुचड़ रहे थे जैसे जलेबियाँ शीरे से नुचड़ती हैं। इनकी आंखों से अल्लाह आंसुओं की फुहार बनकर बह रहा था, पेशानियों पर नूर बनकर चमक रहा था। इनके अजज़ को देखकर अल्लाह मुंह में उंगली ढाले हैरान खड़ा था। वो काफ़िला उल्टे पाँव रेंगता रहा। सदियाँ बीत गईं। जब इस काफ़िले का आखिरी फ़र्द बरूनी दरवाज़े से निकल गया तो मैं चौंका। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे अल्लाह को वो अपने साथ ले गए हों। सारा हरम खाली पड़ा था, जिसके दरमियान मैं खाना ख़ाबा एक बुत की तरह इस्तादा था, पत्थर का बुत। मैं बरूनी दरवाज़े की तरफ उठ भागा। बाहर निकला तो देखा अफ्रीकी काफ़िले का निशान तक नहीं। खो दिया। मैंने सोचा खो दिया। मुझे इस अफ्रीकी काफ़िले के साथ शरीक हो जाना चाहिए था। मैं भी अल्लाह से लथपथ हो जाता। चंद सातों के लिए मैं भी अल्लाह बन जाता। खो दिया। मायूसी के आलम में मैं बहरूनी दरवाजे के सामने एक चबूतरे पर बैठ गया। न जाने कब तक सर झुकाए मैं वहाँ बैठा रहा। फिर जो मैंने निगाह उठाई तो देखा कि वो बरूनी दरवाजे की सीढ़ियों पर अपने अज़ा पर थोड़ी रखे बैठा है। कपड़ों पर जा बजा पाबंद लगे हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ लटक रही हैं, पपोटे आंखों को ढांपे हुए हैं। जब भी कोई विदा होने वाला दरवाजे से बाहर निकलता तो वो मोहब्बत बड़ी नज़रों से इसे देखता और अपनी उंगली आगे बढ़ाकर कहता, मुझे छोड़ के न जाओ, मुझे साथ ले जाओ, मेरी उंगली पकड़कर मुझे साथ ले चलो। नहीं, इस कोठे की जुदाई का गम मत खाओ। वो कोठा तो खाली है। मैं तो अब यहाँ बैठा तुम्हारा रास्ता देख रहा हूँ, तुम्हारा मुंतज़र हूँ, तुम्हारे साथ जाने का ख्वाह हूँ। मेरी उंगली पकड़ो, मुझे साथ ले चलो। वो हर विदा होने वाले का दामन पकड़ता था, लेकिन कोई इसकी जानब न देखता, कोई इसकी बात न सुनता, कोई इसकी तरफ तवज्जो न देता। वो सब पत्थर के इस कोठे पर मरकूज थे। वो इससे अलविदा होने के गम में निडाल थे। वो मकान में खोए हुए थे, इस कदर खोए हुए कि मकीन को भूल चुके थे, और मकीन हैरत और बेबसी से इनके मुंह तक रहा था। इसने मुल्तजा नज़रों से मेरी तरफ देखा और अपनी उंगली बढ़ा दी। नहीं, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। मैंने कहा, मैं तो नहीं आपको ले जा सकता। मेरी आवाज़ भर आई। मैंने वो दोनों हाथों से मैं की उंगली पकड़ रखी है। मैंने मैं को बुत बना रखा है। मैं तुझे साथ कैसे ले जा सकता हूँ? मैं तेरे दवार पर आ सकता हूँ, मैं तेरे हजूर हाजिरी दे सकता हूँ, मैं तुझे सजदा कर सकता हूँ, तेरे पास रह सकता हूँ, लेकिन सिर्फ चंद सातों के लिए, चंद लम्हात के लिए, चंद दिनों के लिए। मैं तुझे साथ नहीं ले जा सकता, मैं तुझे साथ नहीं रख सकता। मैं अपनी मैं की नफ़ी नहीं कर सकता। नहीं, मैं दूसरे दरवाजे की तरफ उठ भागा ताकि इधर से हरम में दाखिल हो जाऊं। अरे वो तो वहाँ भी बैठा था। वो हरम के हर दरवाजे पर बैठा था। वो मक्के की हर मोड़ पर बैठा था, हर सड़क पर, हर गली पर, हर रास्ते की नुक्कड़ पर बैठा था। लोग चल फिर रहे थे। वो मदीना मुनव्वरा जाने की खुशी में फूले नहीं समा रहे थे। कोई किसी की जानब तवज्जो नहीं दे रहा था। दफातन मैंने महसूस किया जैसे वो मक्का मुअज़्ज़मा ना हो, बल्कि यूरोप का कोई शहर हो, जैसे वो कुछ जब चीकोस्लोवाकिया का पराग हो। मुझे अपने बेटे अक्सी मुफ्ती का वो ख़त याद आ गया जिसने पराग पहुंचकर मुझे लिखा था, बापू पराग बड़ा खूबसूरत शहर है, यहाँ बड़ी गहमा गहमी है, लेकिन पता नहीं क्यों सारे शहर बेनाम उदासी का साहिबान साया किए हुए हैं। यहाँ के लोगों को तमाम सहूलतें हासिल हैं। बुनियादी ज़रूरतों को कौड़ियों के मोल मिलती हैं। सरकार रोटी कपड़ा देती है, रहने को मकान देती है, तालीम देती है, करने को काम देती है, इलाज मुआवजा करती है। इन्हें सब कुछ हासिल है। ये सब फ़िक्र माश से आज़ाद हैं, लेकिन यहाँ कोई खुश नहीं, कोई मुतमन नहीं। यहाँ हर सड़क पर, हर मोड़ पर एक न एक गिरजा मौजूद है। ये गिरजे तंग तर्ज तमीज़ के बने हुए हैं, संग तराशी के अनमोल नमूने हैं, अंदर नक्काशी के नायाब डिज़ाइन बने हुए हैं, लेकिन इन्हें देखने वाला कोई नहीं। वो सब मकफल पड़े हैं, कुफल जंगालूद हो चुके हैं,
चौकीदारों को तन्हाई ने बूढ़ा कर दिया है, कम्युनिज्म ने खुदा को मुल्क बदर कर दिया है, गिरजों को मकफल कर दिया गया है। गिरजे से निकाले जाने के बाद खुदा गिरजों के दरवाज़ों के दलीजों पर आ बैठा है। वो आज भी वहीं बैठा है। हर गिरजे के सदर दरवाजे के बाहर वो अपने आसा पर थोड़ी रखे बैठा है। वो हसरत बड़ी हैरत से गिरदोपेश को देख रहा है, हर रागी को देख रहा है। इसके चेहरे की लटकती हुई झुर्रियों में उम्मीद की एक किरण चमकती है। शायद ये आने वाले मुझे देख लें, शायद इसकी तवज्जो मुझ पर मबजूल हो जाए, शायद वह रुक कर पूछे कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों बैठे हो और मुझे उम्मीद भरी नज़रों से क्यों देख रहे हो। शायद वो अभी तक अपने बंदों से मायूस नहीं हुआ, वो अभी तक अपनी तख्लीक पर नाज़ा है। इन्हें देख कर अपने हाथ चूमता है, लेकिन राहगीर आते हैं और गुजर जाते हैं। कोई इसे नहीं देखता, कोई इसे नहीं जानता, कोई इसकी मौजूदगी को नहीं मानता, कोई इससे बात नहीं करता। वो एक फालतू हस्ती है, सिर्फ पराग में ही नहीं, हर बड़े शहर में, सिर्फ कम्युनिस्ट मुल्कों में ही नहीं, यूरोप के हर मुल्क में वो अपना आसा थामे सड़कों गलियों कूचों में घूम रहा है। इस पर उम्मीद क्यों ऐसे कि मुझको उम्मीद है कि कोई मुझे अपना ले, कोई इसे अपना ले। इसे शहर नोर्दी करते हुए इतने साल गुजर गए हैं, लेकिन वो मायूस नहीं हुआ। इसकी थकी हारी आंखों में उम्मीद की किरण बुझी नहीं, उल्टा इसमें मज़ीद चमक पैदा हो गई है। यूँ लगता है जैसे वो जानता हो, जैसे इसको यकीन हो कि वो दिन जल्द आने वाला है जब अहले मगरब फिर से मुझे डिस्कवर करेंगे, इसे देखेंगे, तस्लीम करेंगे, मनाएंगे, फिर इसे उंगली लगाकर मशरक में लाएंगे, साथ साथ लिए फिरेंगे, फिर उंगली लगाकर इसे साथ साथ लिए फिरना फैशन बन जाएगा। एंड इसी वक्त इसी तरह जिस तरह माजी में शक करना, कुफर, इल्हाद, सेकुलरिज्म फैशन बन गए थे, फिर अल्लाह को उंगली लगाए फिरने का फैशन मगरब से हम तक पहुंचेगा और हम इस फैशन को अपना लेंगे। जिस तरह हमने कुफर और इल्हाद के फैशन को अपनाया था, जिस तरह हमने मिनी स्कर्ट पहन के उसके फैशन को अपनाया था, जैसे हमने स्लीवलेस को अपनाया था, जैसे हमने बेल बॉटम को अपनाया था। मगरबी कौमों में कुफर हालात अपनाने की ज़रूरत थी, इनमें अल्लाह को अपनाने और उंगली लगाने की भी ज़रूरत होगी। मगरबी कौमों में खलूस और फ़ालियत और ज़रूरत है, हम में मुनाफ़कत है, मुनाफ़कत है, मुनाफ़कत है। जब मैं भागा होटल पहुंचा तो मेरा दम चढ़ा हुआ था। कुदरतुल्लाह शहाब नासाजी तबा की वजह से पलंग पर लेटे हुए थे। डॉक्टर इफ़त पास बैठी थी, उन्हें सजेशन दे रही थी कि आप आज की आखिरी वाजबात अदा कर सकते हैं, तोहफ़े विदा कर सकते हैं। नहीं, होटल से बाहर न जाना। मैंने घबराहट कर कहा, होटल से बाहर न जाना? क्यों, बाहर क्या है? डॉक्टर ने पूछा। इसके बाद क्या हुआ जी आने वाली वीडियो में हम आपके सामने बयान करेंगे। सो आपकी गठरियाँ और मैं कौन हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की काविश आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मज़ीद इसके अंदर बेहतरी लाएंगे और उन तमाम अहबाब का शुक्रगुज़ार भी हूँ जो गए बगए हमारी वीडियोज़ की बेहतरी के लिए हमें अपनी कीमती आरा से नवाजते रहते हैं और हमें कमेंट्स बॉक्स के अंदर अच्छे मुफीद मशवरे देते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फज़ल व करम से हमारा ये सिलसिला मज़ीद आपके ज़ौक़ को बढ़ाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।